Good morning students. Today we will learn some important factors and some important characteristics of immune system, and this is very interesting topic because today we are going to learn a thing that is very important to us and that will definitely help our body and our family also if we know the certain things about immunity. So, students, in today's class will learn what is immunity and what are the different factors, what are the different type of cells which help our body to improve our immunity. And student, this is the part 6 of lesson number 8 and your lesson is human health and diseases. And in today's class we are going to learn about immunity. Let us recall what we have learnt in our previous class. Students, in our previous class we have learnt about a very important disease that was cancer. So, students, if anyhow you have missed it, please see the previous 2 classes, because in previous 2 classes we have discussed very important diseases like AIDS and cancer. And now we will extend the topic and now we are taking immunity in today's class. Students, if I ask you immunity, then you are already familiar about the word immune system. ठीक है, immune system जो दोनों words हैं that you are already familiar, and you all know that we have an inbuilt system inside our body which help us to grow more and more stronger so that we can fight against any disease causing pathogen or any type of such substance which can harm our body. Students, you all know that whatever substance which are, there are many substances which are present in our body. Okay? So, all the substances which are present in our body, all the substances which are present in all body, they do not help in providing the immunity. Only there are certain proteins, only there are certain cells which help our body to fight against the disease causing pathogens and the outside agents. Now, we should understand what are the invaders and what are the outside substances which can harm our body. So, students, the invaders or the outside substances which can harm our body, they may be a variety of substance. Okay? You may have seen that whenever there is a change in season, okay, means when the winter is approaching and when the summer is going to finish, at that time our body falls sick and we have a problem of cold and cough. Okay. This is because our body is providing this immune system is working in our body, and this immune system has deployed certain agents in your body to fight against the disease causing viral pathogens which are trying to get entry inside your body. Or if I give you another example, for example, you went to a park where you have seen certain beautiful flowers which you have never seen them before. Okay. So, after some time certain types of red rashes or certain type of allergic symptoms you can see on your fingers, on your legs, on your hand. So, this is allergy. Okay. Our body or anybody other's body can be allergic to different substances. So, it may happen that the pollen grain which is present in the flower, it is providing allergy, it is providing its smell, the chemicals which are released by the pollen grain, they are attacking your skin, and your skin is showing response to the pollen grains. And therefore, when there is a fight between your skin and the pollen grains or the chemicals, then that particular area become red, or a sort of itching or allergy you may feel, or a discomfort you may feel in your body. So, this is because your immune system is working, आपका immune system work कर रहा है. Okay. Similarly, if any mosquito or a insect bites you, there may be a red area over there. Okay. There may be a boil. So, that is
that is actual an indication that your immune system is working, and immune system has deployed some of the agent at the area of the infection in your hand or on the skin. Okay. So, whatever outside substance, the outside substance may be a pathogen. Pathogen word you already know. Pathogen is any such organism which is capable to carry a disease causing organism inside your body, or disease which is able to inject certain disease causing agents inside your body, or is able to get inside your body to cause a harm or a disease. ठीक है. तो किसी तरह का भी लिविंग सब्सटेंस अगर वो छोटा है, माइक्रोस्कोपिक है, और वो आपकी बॉडी में किसी डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को इंजेक्ट कर सकता है या खुद ही आपकी बॉडी में आके आपको बीमार कर सकता है, तो उसको हम कहेंगे पैथोजन. ठीक है. पैथोजन तो आप जानते हो कि उसके वजह से हमारी बॉडी बीमार पड़ती है, लेकिन पैथोजन क्या हुआ, एक लिविंग सब्सटेंस हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म हुआ. Not only the living organism but the non-living organisms also cause a type of irritation or diseases in our body. Okay? हमें किसी तरह की किसी चीज़ से एलर्जी हो सकती है. ओके. फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को एग खाने से एलर्जी हो सकती है. आपकी पूरी स्किन पे कुछ रैशेज हो जाएंगे, या कुछ जैसे वो चींटी काटती है या एक मॉस्किटो बाइट करता है तो राउंड स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, स्वॉलन स्ट्रक्चर, वैसे आपकी पूरी बॉडी में हो सकता है. So, I mean to say that our body can show allergic reaction to both living and non-living thing. ठीक है. अब जो ये non-living thing है या ये जो living thing है which is causing harm to our body, they can either enter our body. ठीक है. दो ही तरीके हैं हमारी बॉडी पे अटैक करने के, या तो वो हमारी बॉडी में एंटर अंदर करेगा, या क्या होगा, या ये है कि वो जो नॉन लिविंग सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी में बाहर से ही अटैक करेगा. ये लिविंग सब्सटेंस बाहर से हमारे स्किन पे अटैक करेगा, हमारे हेयर्स पे अटैक कर सकता है. ठीक है ना. तो ये दो ही तरीके, आइदर द लिविंग और नॉन लिविंग सब्सटेंस गेट्स इनसाइड आवर बॉडी और इट विल अटैक अस फ्रॉम आउटसाइड. ठीक है. ये दो ही तरीके हैं. सो ऑल देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंस which can harm our body. Now our body has a inbuilt mechanism to fight against these type of intruders. जो ये बाहर के जो substance हैं जो हमारी बॉडी में अंदर आने की कोशिश करते हैं, इन सब से हमारी बॉडी के लिए एक इनबिल्ट मैकेनिज्म है. ठीक है. तो बाहर से कोई भी आने वाला सब्सटेंस जो है उस या हमारी बॉडी में जो अटैक करता है उस सब्सटेंस को तो हम कहते हैं एंटीजन. ठीक है. सो द आउटसाइड सब्सटेंस, whether living or non-living, which tries to gain entry in our body, which tries to give harm to our body, is known as the antigen. उसे क्या कहते हैं, antigen. And our body has an inbuilt mechanism to fight against the disease causing pathogen or to the non-living substances which try to gain entry or which try to attack our body. So that inbuilt system which increases our capacity to fight or to get interaction with the unknown substance so that our body is safe, that type of inbuilt mechanism is known as the immune system. Okay. And if you study about this immune system, there are variety of cells which are available inside our body, variety of organs also, variety of tissues also, which help our body to increase the immunity. Okay. So this is all about the immune system. Okay. And the power of our body to fight against the disease causing agent is the immunity. आपने देखा होगा बहुत सारे जो हैं लोग, वो कोई भी मतलब मौसम चेंज हुआ या कहीं पे वो चले गए या कोई बाहर से घर में आ गया या उन्होंने एक नया कपड़ा पहना, तो हर चीज़ के लिए उनकी बॉडी में एलर्जी शो होती है. ठीक है ना. सो कहीं ना कहीं जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता है उन लोगों का. ओके. और या तो ऐसा है कि हमारी बॉडी किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज आर बॉडी हैज़ अ मैकेनिज्म to have a knowledge that which is the self and which is the non self. मतलब हमारी बॉडी का पार्ट क्या है और एक दूसरी बॉडी का पार्ट क्या है या दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन है, इस चीज़ को रिकग्नाइज करने की हमारी बॉडी में इनबिल्ट कैपेसिटी है.
मतलब हमारी बॉडी बाहर के सेल को, बाहर के टिश्यू को, बाहर के ऑर्गन को बहुत ईजिली पहचान जाता है, मेमोरी में रख सकता है कि हमारी बॉडी का ये ऑर्गन है कि बाहर का है, या हमारी बॉडी का टिश्यू है या बाहर की बॉडी का है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है या हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन होता है, इनमें बहुत सारे हमें इंजेक्शंस या मेडिसिन दी जाती है सो दैट आवर बॉडी एक्सेप्ट दैट टाइप ऑफ ऑर्गन और टिश्यू। मतलब बाहर का कोई भी ऑर्गन, किसी और की बॉडी का ऑर्गन या ब्लड हमारी बॉडी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करती है। इसको एक्सेप्ट करवाने के लिए हमारी बॉडी में बहुत तरह के प्रोटीन्स इंजेक्ट किए जाते हैं, इंजेक्शंस इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट करे। बिकॉज ये हमारी बॉडी की एक इनबिल्ट मैकेनिज़्म है कि जैसे ही बाहर से कोई सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करेगा या बाहर से हमारी बॉडी से अटैक या चिपकने की कोशिश करेगा, हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है। ये जो रेजिस्टेंस है ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। हो सकता है कि हम जिस रूम में ब्रूमिंग हो रही है, मतलब झाड़ू लग रहा है, हम वहाँ पे एंटर हुए तो क्या होगा, आपको तुरंत क्या आएगी, छींक आएगी। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स हमारी बॉडी में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे उसको हमारी बॉडी ने इजेक्ट कर दिया बाय मीन्स ऑफ स्नीजिंग। ओके, तो आपको छींक आई और आपने उन पार्टिकल्स, तो ये भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है। ओके, उसी तरह से जैसे कि आपने कोई इंजेक्शन वगैरह कुछ लिया और तुरंत ही वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। क्यों? क्योंकि इंजेक्शन हमने मेडिसिन बाहर से ली है, आपकी बॉडी ने क्या रिस्पॉन्स शो किया, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई। ओके, तो इसका कहने का मतलब ये है कि फॉर एवरी टाइप ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, if any organism, if any non-living thing tries to enter our body or tries to stick to our body shows a response. Okay, ठीक है, and this is termed as the immunity. Now if we study about the immunity, हमारी बॉडी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। The first is known as the innate immunity and the second one is known as the acquired immunity. ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? innate immunity तो वो इम्यूनिटी है जिसमें क्या होता है कि जब एक बेबी बॉर्न है और बॉर्न होने के टाइम तक उसकी बॉडी में जो पहले से ही उसके बॉडी में इम्यूनिटी है, जो इम्यूनाइजेशन पावर है, दैट इज़ नोन एज द इनेट इम्यूनिटी। उसको क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। सो अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स बॉडी right from its birth, at the time of the birth, originally which is present is known as the innate immunity. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? innate immunity कहेंगे। just a second students. ओके, एंड एक्चुअली मैं वो कमेंट सेक्शन बॉक्स भी देख रही थी। ओके, सो यहाँ पे इसमें ये अभी मैंने अभी क्या डिस्कस किया, आपको जहाँ पे भी जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा आप पूछ सकते हो ताकि आपको मैं वहीं पे बता दूँगी। ठीक है, इसीलिए मैंने वो आपका डाउट वाला एरिया अभी इसको और एक्सपैंड किया। ठीक है, ओके, सो इनेट इम्यूनिटी आपको बता दिया, द इम्यूनिटी विच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एनी ऑर्गेन इन द ह्यूमन बॉडी राइट फ्रॉम इट्स बर्थ। ओके, दैट विल बी नोन एज इनेट इम्यूनिटी। मतलब एक बच्चे के जन्म के टाइम में उसकी बॉडी में जो सारे ऑर्गन्स बन गए हैं, टिश्यूज़ बन गए हैं और जिसके वजह से उसकी बॉडी में इम्यूनिटी है, दैट इज़ इट्स इनेट इम्यूनिटी। वो क्या होता है? उसकी इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसकी स्किन बनी हुई है। ठीक है, स्किन भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, उसके नोज़ में म्यूकस है, म्यूकस भी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी जो भी सारे प्रोसेसेस या जो भी सारे सब्सटेंसेस हमारी या जो भी सारे ऑर्गन टिश्यूज़ हमारी बॉडी में already present at the time of the birth and which are improving our health and providing immunity, that comes under the innate immunity. ठीक है, innate immunity के हम एक बार ये देखते हैं कि what are the different types of organs or tissues or mechanism which are present inside our body which help in innate immunity. जो हमारी बॉडी में innate immunity को प्रोवाइड करते हैं वो ऐसे कौन से ऑर्गन, टिश्यूज़ या ऐसे कौन से सिस्टम है या ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ओके, इसमें पहला है आपका फिजिकल।
okay. There are certain physical barriers which are present in our body, okay. So यहाँ पे barrier भी आएगा, okay. So there are certain physical barriers which are present inside our body. जैसे मैंने अभी आपको स्किन का एग्जांपल भी दिया था ना, कि जैसे ही हमारी बॉडी पे कुछ आउटसाइड सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी पे चिपकेगा, स्टिक होगा, तो हमारी बॉडी वहाँ पे रैशेस बन सकता है, बॉयल हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे राउंड स्ट्रक्चर्स गोल गोल बन सकते हैं, इचिंग हो सकती है। तो ये इसलिए क्योंकि स्किन जो है, स्किन इज़ एक्टिंग एज अ फिजिकल बैरियर। स्किन कैसा काम कर रहा है? स्किन वहाँ पे एक फिजिकल बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ पे ओके, सो आई थिंक नाउ इट इज़ विजिबल, यस। सो फिजिकल बैरियर में आपका क्या क्या हो गया? स्किन है, ठीक है, यस, स्किन है। देन म्यूकस, म्यूकस इज द स्टिकी लिक्विड विच इज सीक्रेटेड बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंड बाय द यूरोनोजेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। आपको अभी मैंने बताया था कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल ट्राई टू एंटर आवर बॉडी, देन आवर बॉडी स्नीजेज इट, स्नीजेज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल गोज आउट, ठीक है। उसी तरह से आपको पता है कि योर नोज इज प्रोवाइडेड बाय हेयर्स, ठीक है, एंड दीज हेयर्स आर वाई बिकॉज if the foreign particle try to enter in your nose, then it gets entangled in the nose and the mucus. So mucus क्या करता है? उस जो भी फॉरेन पार्टिकल्स है उसको अपनी बॉडी में स्टिक करके उसकी एंट्री को प्रोहिबिट कर देता है। तो वहाँ पे म्यूकस जो है हमारी बॉडी में एक सोल्जर का काम कर रहा है और वो वहीं पे एंट्री पॉइंट पे है, क्योंकि आपकी बॉडी में जो ये पैथोजेंस हैं या नॉन लिविंग सब्सटेंस है, ये एंट्री कहाँ से लेंगे? ये एंट्री लेंगे सारे ओपनिंग एरियाज से, ओके। नोज़ की ओपनिंग एरिया है, आपके ईयर्स ओपन है, माउथ ओपन है, ठीक है ना। सो जो भी ओपनिंग एरियाज हैं, ऑल द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स ट्राइज टू एंटर फ्रॉम देयर, ओके। सो यहाँ पे स्किन है। देन म्यूकस आपको मैंने बताया कि इट इज़ प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। जब आप माउथ में अपना जाओगे, अभी माउथ का फिजियोलॉजिकल बैरियर में भी आएगा कि सलाइवा वहाँ पे प्रेजेंट है। अभी हम म्यूकस की बात करते हैं जो स्टिकी सब्सटेंस है, ठीक है ना, ओके। जब आप देन यहाँ पे है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। when you take the food inside your body, आपको पता है कि जो फूड है बोलस के फॉर्म में चेंज होकर उसमें एक वो म्यूकस से कवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। और जब स्टमक में भी जाता है तो स्टमक में भी आपको पता है कि द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इट सीक्रेट्स म्यूकस, ठीक है ना। HCl के एक्शन अगर ज़्यादा है हो जाता है तो उसको थोड़ा सा कम करने के, मिनिमाइज़ करने के लिए हमारा स्टमक जो है म्यूकस सीक्रेट करता है, ठीक है ना। तो इतना ही उसका म्यूकस का काम नहीं, वहाँ पे ये भी काम है टू स्टिक द अनवांटेड सब्सटेंस एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉय इट, और इफ़ इट इज़ अ पैथोजन देन हेल्प टू किल इट, ठीक है। तो इस तरह से म्यूकस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी है, ये हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में भी है, और ये हमारे यूरोनोजेनिटल ट्रैक में भी है, ठीक है, ओके। देन द यूरोनोजेनिटल ट्रैक में भी मैंने आपको बताया कि म्यूकस है। और क्या होता है कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है या अंदर आ जाता है तो ये म्यूकस उसको स्टिक कर देता है, और जो ये रेस्पिरेटरी ट्यूब, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्यूब या यूरोजेनिटल ट्यूब्स होती हैं, इन ट्यूब्स पे अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन बोथ द साइड्स, एंड दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स are known as cilia. इन्हें क्या कहते हैं? cilia. So these cilia they beat in a coordinated manner and expel the substance outside the body, और ये substance को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा फिजिकल बैरियर। ये किस तरह के बैरियर हुए? फिजिकल बैरियर। द नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, ओके। Now the physiological barrier, they may be of these types: acid, saliva and tears, okay। acid, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में
जो स्टमक है उसमें म्यूकस सिक्रीट होता है, ठीक है। उसी तरह से यू ऑल नो वेरी वेल दैट इन आवर स्टमक एसिड इज सिक्रीटेड, mild acid is secreted and that is hydrochloric acid, and it is secreted for two purposes. The first purpose is to kill the disease causing pathogens, and the second one is that it helps in improving digestion, it helps in digestion, ठीक है ना। तो दो वजह हैं जिसके वजह से एसिड हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि एसिड के वजह से कुछ जो ऑर्गेनिज्म जो फूड के थ्रू हमारी बॉडी में आ गए हैं दे विल गेट किल्ड बाय द एसिड, ठीक है। उसके बाद है सलाइवा। सलाइवा में भी है कि जैसे ही फूड हम अपनी बॉडी में लेते हैं फूड गेट्स मिक्स इन अ लिक्विड विच इज़ सलाइवा। तो अगर फूड के साथ कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ गए हैं अनवांटेड पार्टिकल्स, फूड अगर साफ़ नहीं था या हमने उसको बहुत देर तक खाना अपना खुला रखा, उसको खाया नहीं, तो जो एयर में स्पोर्स हैं, फंगल स्पोर, ठीक है, या बैक्टीरियल स्पोर, वो उसमें एंट्री ले लेते हैं, तो हमारी बॉडी में आ गया सलाइवा के मतलब फूड के थ्रू। सो सलाइवा ऑल्सो हेल्प्स टू फाइट द डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स, वो उसको किल करने में हेल्प करता है क्योंकि वो उसको एंटैंगल्ड करके उसका जो एक अटैकिंग का प्रोसेस है हमारी बॉडी में उसको रोक देता है, ठीक है। थर्ड है टीयर्स। इफ़ एनी अनवांटेड टीयर्स, आपको जो आईज है, आईज आर वेरी सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी, एंड वेन एवर दे आर सो sensitive organ that even a very minute thing if tries to enter our eyes then tears come। ये हमारी आईज में टीयर्स आ जाते हैं, तो जो टीयर्स आते हैं वो रोने के कारण तो आते ही हैं, और दूसरी क्या वजह है कि अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंट्री लेता है तो उस फॉरेन पार्टिकल को क्या करते हैं, टीयर्स जब बाहर टीयर्स जब आँखों में फिल हो जाते हैं तो उसमें जो फॉरेन पार्टिकल्स है वो स्विम करने लग जाता है, एंड वो टीयर्स अंदर आईज में नहीं जाते, बाहर की तरफ आते हैं। सो व्हेन द टीयर्स कम आउट द फॉरेन पार्टिकल्स कम आउट, ठीक है ना। तो इसीलिए जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन एक सब्सटेंस एंट्री करता है तो हमारे जो घर में बड़े हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि आप पानी से आँखों को साफ़ कर लो, ठीक है ना। तो वो इसी वजह से होता है, किस वजह से होता है, सो दैट अलॉन्ग विद द आउटकमिंग वाटर द डिजीज कॉजिंग एजेंट और द फॉरेन पार्टिकल्स कम्स आउट, ठीक है। एक सेकेंड बेटा ज़रा पानी पी लो। सो देन विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर विच इज़ द सेलुलर, मीन्स दे आर सर्टेन बैरियर्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल। जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट। So the next one is the cellular barrier, or the type of cells or substances which are present in the cell, जो कहाँ पे present है, सेल के अंदर है, ठीक है, ओके। इन द प्रीवियस क्लास जब मैंने आपको कैंसर पढ़ाया था तो मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में, या हमने पहले भी पढ़ा है ब्लड के बारे में, आपने 11th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 8th में भी, छोटी क्लासेस में भी पढ़ा, आप अच्छे से जानते हो व्हाट आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। सो इफ RB द अदर नेम फॉर रेड ब्लड सेल इज इराइथ्रोसाइट्स, ठीक है, आपको पता है अच्छे से। देयर इज अनदर टाइप ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड एंड दैट इज नोन एज द ल्यूकोसाइट और WBC, ठीक है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल के साथ WBC भी प्रेजेंट होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे RBC नहीं लिखा और WBC क्यों लिख दिया, उसका क्या रीज़न है, क्योंकि RBC का इम्यूनिटी से कोई लेना देना नहीं है, वो इम्यूनिटी में हेल्प नहीं करता है, WBC इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, ओके। सो WBC का द अदर नेम फॉर WBC इज व्हाट, it is leukocytes, okay, and there may be different types of WBC in the blood, okay। आपने अलग अलग तरह के WBC क्लास 9th में, क्लास 11th में पढ़े हैं, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, ठीक है ना। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC that has capacity to fight against the different type of organism, and hence
दे हेल्प टू इम्प्रूव द इम्यूनिटी, हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, इसी में आपका एक आता है PMNL, ठीक है, ये भी एक तरह का क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ WBC। एंड आप अगर अपने इसमें देख रहे होगे पेज नंबर 150 से मैं आपको जो है पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सो इसमें पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, यहाँ पे इसका नाम जो दिया है, कहाँ लिखूँ मैं, इधर लिख देती हूँ नीचे, ठीक है, पोलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। पोलीमॉर्फो क्यों कहा गया है, पोलीमॉर्फो इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस, जो कुछ ऐसे WBC होते हैं जिसमें जो न्यूक्लियस होता है उसके बहुत अलग अलग शेप्स होते हैं, कहीं बाइलोब्ड है, कहीं बहुत सारे लोब्स बने होते हैं, ठीक है। सो ये लोब्स के वजह से इसका जो न्यूक्लियस का जो शेप होता है पोलीमॉर्फो मीन्स, पोली मीन्स मैनी, मॉर्फोलॉजी मीन्स मैनी टाइप्स एंड शेप्स, ठीक है। So there can be different types of this WBC and they are also known as neutrophil, ठीक है। और यहाँ पे पोलीमॉर्फो पेज नंबर 1 आज हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं दैट इज पेज नंबर 150 एंड पेज नंबर 151, ठीक है। सो पोलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मैंने क्या बताया, ल्यूकोसाइट इज द अदर नेम फॉर WBC, ठीक है। जैसे हम RBC को इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं, उसी तरह से WBC का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोसाइट, ओके। ये एक तरह का न्यूट्रोफिल होता है एंड न्यूट्रोफिल क्या है, न्यूट्रोफिल इज अ टाइप ऑफ WBC और अ टाइप ऑफ ल्यूकोसाइट, ओके। सो ये हो गया। मोनोसाइट भी एक तरह का WBC है। देन नेचुरल किलर सेल, ओके, देयर आर नेचुरल किलर सेल जो कि B सेल और T सेल्स होते हैं। इसका हमने थोड़ा सा कैंसर में भी पढ़ा था, आगे भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे B सेल क्या होते हैं, T सेल्स क्या होते हैं। सो नेचुरल किलर सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। और ये जो सेल्स होते हैं इनमें ये कैपेसिटी होती दैट व्हेनेवर सर्टेन ऑर्गेनिज्म कैन come inside the body, then these cells they secrete certain type of substance to kill the particular type of organism, ठीक है। So natural killer. Then there are certain macrophages cell, okay, macrophages cell, अगर आपको ध्यान हो कि एक ऑल आउट का एक ऐड आता था पहले कि ऑल आउट हमने लगा दिया अपने स्विच बोर्ड में और एक मॉस्किटो आया और ऑल आउट ने उसको एनगल्फ कर दिया, ठीक है। तो उसी तरह से macrophages means engulfing, okay, there are certain cells which are known as macrophages which engulf the foreign substance, किसी भी foreign substance को वो engulf कर सकता है या वो उसको engulf ही करेगा। मैक्रो है ना, macrophages मतलब जो उसको तोड़ के भी खा ले सकते हैं अंदर या एज ए होल भी उसको लेके अपनी बॉडी में वो डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दे आर नोन एज द मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो ये मैक्रोफेजेस हमने वहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। कैंसर जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि सॉरी एड्स में हमने पढ़ा था, ठीक है। एड्स में हमने पढ़ा था कि जब एड्स का वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारा जो वो हमारे DNA को, सेल्स में जो DNA उसको चेंज कर देता है और जो मैक्रोफेजेस हैं वो उसी तरह के डिजीज्ड वायरल पार्टिकल्स बनाने लग जाते हैं, वहाँ हमने पढ़ा था, ठीक है ना। ओके, सो मैक्रोफेजेस एंड द लास्ट वन इज अनदर टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज नोन एज साइटोकाइन, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, ये लास्ट तरह का आपका, सबके आगे आपको बैरियर लिखना है, ठीक है। द लास्ट टाइप ऑफ बैरियर इज साइटोकाइन बैरियर. Barrier means a type of chemical substance which is actually a type of protein which is secreted in the response whenever a substance try to gain entry in the cell. एक सेल है, सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है तो सेल एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट करता है, एंटीबॉडीज़ भी सीक्रेट करता है, एंटीबॉडीज़ भी हम आगे पढ़ेंगे, ये एंटीबॉडीज़ की बात नहीं हो रही है। सेल एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट करता है एंड द नेम ऑफ द प्रोटीन इज इंटरफेरॉन, ठीक है। ये इंटरफेरॉन क्या, इट हैज़ द कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय द
द इन्वेडर एक पैथोजन हो सकता है या एक नॉन लिविंग सब्सटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस पैथोजन को या नॉन लिविंग सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी बॉडी में एक तरह का प्रोटीन सीक्रेट होता है और इंटरफेरॉन एक तरह का प्रोटीन का नाम है, ठीक है। सो ये अभी हमने जितनी भी सारी चीज़ें पढ़ी, दीज आर ऑल द बैरियर्स विच हेल्प टू इम्प्रूव द इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। ये जब एक बच्चे का जन्म होगा, एक बर्थ होगा, तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी ये सारी इम्यूनिटी, ये सारे बैरियर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं जो कि उसकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये आपको अच्छे समझ में आ गया। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। ये तो हुआ हमारी बॉडी में इनबिल्ट मैकेनिज्म, ठीक है। अब हम एक ऐसी इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं हमारी बॉडी में जिसको प्रोवाइड करने के लिए सारा सामान तो है, बट हम उसको बाहर से एक्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? धीरे धीरे हम अपनी बॉडी में एक बाहर से एनवायरनमेंट के वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। पहले नहीं था, बाद में हमारी बॉडी में आ सकता है, मतलब कुछ ऐसा चेंज एनवायरनमेंट में हुआ जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ चेंज आया, ठीक है। तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी हुई। देन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है दैट इज़ पैथोजन स्पेसिफिक। ये कैसे होती है? ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, ठीक है। पैथोजन स्पेसिफिक होती है मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई भी, मतलब हमारी बॉडी में वी हैव अ इनबिल्ट मैकेनिज्म टू डिफ्रेंशिएट वन पैथोजन फ्रॉम द नेक्स्ट। एक वायरस को और एक बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने का जो पावर है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी है। किस बैक्टीरिया में या कौन से वायरस पे किस तरह का अटैक करना है, कितने विगर या कितनी स्पीड के साथ करना है, ये सारा जो है ये सारा हम कहाँ पे पढ़ेंगे? वी विल लर्न इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। तो पहली बात, इसे हम एक्वायर करते हैं, ये हमारी बॉडी में बाहर में जो चेंजेस होते हैं उससे हमारी बॉडी में रिस्पॉन्स शो होता है। दूसरा, ये पैथोजन स्पेसिफिक होता है। एंड द थर्ड थिंग अबाउट दिस टू लर्न इज़ दैट इट इज़ मेमोरी बेस्ड। ये कैसा होता है? मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। ओके, नाउ आई थिंक इट इज़ विजिबल, ठीक है। अब ये विजिबल है ना, इट इज़ मेमोरी बेस्ड, ओके। यहाँ पे क्या है कि ये जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, यहाँ पे इम्यूनिटी भी लिख दूँ मैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ओके। सो दिस acquired immunity, it may be due to primary response और a secondary response, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो प्राइमरी रेस्पॉन्स और जो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है ये होता किस वजह से है, ओके। देखो, सबसे पहली बार क्या होता है कि अगर एक बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, मतलब सपोज करो कि उस बैक्टीरिया का जो शेप है ओके, सपोज करो कि जो बैक्टीरिया है उसका शेप कुछ इस तरह से है, ओके। तो ये कौन सा वाला शेप हुआ? बताओ कौन से शेप का बैक्टीरिया वो होगा? इसका क्या नाम देंगे हम? व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई द शेप ऑफ द बैक्टीरिया। आगे मैं बढ़ती हूँ लेकिन मैं इसका आंसर देखती हूँ कि आप क्या बोलोगे। हाँ, आप एक रोशनी ने पूछा है कि मैम व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेमोरी बेस्ड। अभी बता रही हूँ मैं आपको, मैंने पूरा नहीं करा है कि मेमोरी बेस्ड क्या होता है, उसी को एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ। रॉड शेप, वेरी गुड, ओके। आस्था, दर्शना, हितेश, वेरी नाइस। सो ये जो बैक्टीरिया है, हमें बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई आप आंसर देखते तो लगता है यस ये दे आर वॉचिंग एंड वी फील वेरी प्राउड एंड वी फील वेरी हैप्पी टू टीच यू, ठीक है ना। ओके, चलो, ये जो है ये वाला बैक्टीरिया क्या है? ये वाला बैक्टीरिया रॉड शेप बैक्टीरिया है, ओके। तो अगर अभी आपने जैसे पूछा ना मेमोरी बेस्ड क्या होता है, मैं उसी को बता रही हूँ आपको एग्जांपल लेके कि सपोज करो कि हमारी बॉडी में एक बैक्टीरिया एंट्री लेने की कोशिश करता है, जैसे लैक्टोबैसिलस, ओके। लैक्टोबैसिलस जो है वो बैसिलस शेप का है, रॉड शेप का बैक्टीरिया है, ओके। अब लैक्टोबैसिलस तो एक गुड बैक्टीरिया है तो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर इस तरह से कोई ऐसा बैक्टीरिया कि जो हमारी बॉडी में हार्म करे, ओके, तो आपकी बॉडी में जब भी सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया एंट्री करने के पहले वो बॉडी में आया, बॉडी से सेल में आया, सेल में WBC जो हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ टाइप ऑफ प्रोटीन एंड दैट इज़ नोन एज एंटीबॉडी, ओके, एंड यू ऑल नो दैट एंटीबॉडी इज़ नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। एंटीबॉडी को क्या कहते हैं? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं वो आपको रीज़न यहाँ समझ में आएगा। जैसे ही एक सेल में एक फॉरेन पार्टिकल एंट्री करने की कोशिश कर रहा है और उसका शेप रॉड शेप का है, ठीक है, हमारे सेल ने ये रिकग्नाइज कर दिया कि एक रॉड शेप सब्सटेंस जो है लिविंग है, वो एंट्री करने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी बॉडी की मेमोरी है, अभी आगे भी ये यूज़ होगी। अब इसके रिस्पॉन्स में सपोज करो कि अब मैं इसको एक बार मिटा के, ये रहा आपका सेल, ठीक है, ओके, इसमें ये रहा आपका न्यूक्लियस, और अब क्या है कि सपोज करो यहाँ पे ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया है वो हमारी इस सेल के अंदर आ गया है, ओके। सो सेल विल नाउ अपोज द एंट्री और सेल विल ट्राई टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी बाय सिक्रीटिंग व्हाट, बाय सिक्रीटिंग। ये तो हमने सेल के हम इसके अंदर ले आए हैं, लेकिन आपको पता है कि जो WBC होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है आपके जो ब्लड है, ठीक है। तो ये तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। सेल एक्चुअली सेल के अंदर तो वो तब जाएगा, पहले उसको ब्लड में आएगा ना, पहले हमारी बॉडी में फूड के थ्रू आया या एयर के थ्रू आया, तो उसके बाद वो कहाँ पे आया? ब्लड में आया, ब्लड के बाद वो सेल में जाएगा, ठीक है। तो जब वो इसमें आया, यहाँ पे फिर मैं इस डायग्राम को भी रब कर देती हूँ, ओके। अब यहाँ पे ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये आपका एक ब्लड वेसल हो गई, आर्टरी वेन, कुछ कैपिलरी कुछ भी हो सकती है। अब इसमें आपका RBC भी है, WBC भी है, अलग अलग जगह हैं, ठीक है। RBC, WBC, ये सपोज करो ये वाला डायग्राम हमने WBC का बना दिया, ये RBC है, ठीक है, ये WBC है। अब जो आपका ये रॉड शेप बैक्टीरिया है वो आपका ब्लड में है। सो योर WBC स्टार्ट टू प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज़ नोन एज एंटीबॉडी, और तुरंत क्या होगा कि ये वाले बैक्टीरिया के चारों ओर क्या ये सीक्रेट हो जाएंगे, एक तरह की प्रोटीन सीक्रेट हो जाएगी जिससे हम क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, ओके। और वो एंटीबॉडी इससे फाइट करेंगी, वो अपने अंदर से सब्सटेंस को निकालेंगी इस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाउ इफ़ यू हैव अ गुड इम्यूनिटी, द WBC गेट सक्सेस, ठीक है। अगर इम्यूनिटी वीक है तो इसमें ये बैक्टीरिया कि वो क्या हो जाएगी? ये विन करेगा एंड इट विल टेक ओवर योर बॉडी, ओके। और ये इससे जो भी डिजीज़ हो सकती है हमारी बॉडी में वो हो जाएगी। अब क्या है, ये तो पहली बार जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आया था तो इस बॉडी की मेमोरी हमारी बॉडी ने रख ली, और बहुत सालों बाद भी अगर इस तरह का कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी एक मेमोरी थी कि हाँ, ये कुछ साल पहले भी हमारी बॉडी में एंट्री इस तरह का कोई फॉरेन पार्टिकल आया था। बिकॉज ऑफ दैट आवर बॉडी विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस सेकेंडरी रेस्पॉन्स। हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? सेकेंडरी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। और नाउ आवर बॉडी इज already prepared to fight against that type of invading or intruder by using the memory, and our body will try to secrete more amount of antibody, और हमारी बॉडी बहुत सारी एंटीबॉडी सीक्रेट करेगी उससे फाइट करने के लिए। तो पहली बार whenever foreign substance or outsider try to gain entry in our body, the first response that our body shows to it after interacting with it is known as the primary response। और primary response में हमारी बॉडी क्या सीक्रेट करती है? एंटीबॉडीज़, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ जब सीक्रेट करती है तो इसके लिए कुछ WBC हेल्प करते हैं, और उनका नाम क्या होता है? बी लिम्फोसाइट एंड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। हमारी बॉडी में मतलब एंटीबॉडीज़ का बनना, एंटीबॉडीज़ का वर्क करना, दैट इज़ ऑल कंट्रोल बाय B एंड T लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और मैं अगली क्लास में भी समझाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी हो रहा है,
इसको let me complete it, and this B and T lymphocyte I will take in another class also in a detailed manner. ठीक है, ओके. अब क्या होता है ये एंटीबायोटिक, आई वॉज ऑन सेकेंड रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स. पहली बार के बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल द अटेम्प्ट्स, at all the attempts our body try to fight against the intruder and the foreign particles with a great vigor or with a great strength. हमारी बॉडी और ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से फाइट करेगी और उसके वजह से वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है फॉरेन पार्टिकल वो किल हो जाएगा या वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो इस तरह की पहले फर्स्ट रेस्पॉन्स के बाद जो सब्सिक्वेंट रेस्पॉन्स होते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऑल दैट रेस्पॉन्सेज विच आर शोन बाय आर बॉडी इन while interacting with the foreign particle is known as the secondary response. वो सारा क्या होता है, secondary response होता है. ठीक है, B और T lymphocytes क्या मैंने बताया, these are the special type of lymphocytes which help in action of the antibody. ठीक है, बाकी मैं ये वाला एरिया मिटा देती हूँ क्योंकि मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में लूँगी, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास. ओके, सो वी दिस ऑल्सो ओके, इतना मैं रब कर देती हूँ बिकॉज दिस आई विल टेक इन अनदर क्लास. ओके, एंड हियर I have written actually this B lymphocyte is directly involved for production of antibodies and B lymphocyte is helped by T lymphocyte. इतना याद आपको रखना है. ठीक है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए डायरेक्टली कौन सा सेल इन्वॉल्व होता है, B lymphocyte. लेकिन B lymphocyte को हेल्प करने के लिए जो दूसरा lymphocyte है जो B lymphocyte को हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज द T lymphocyte. ठीक है, so that's all for today. If you have any doubt, please you can post it. If you have any doubt students, you can post it. और अगले क्लास में इसको मैं कंटिन्यू करूँगी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेस्पॉन्स विल सी एंड विल सी सम अदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी ऑल्सो. ओके, so thank you student, thank you very much.